Hello, Assalamu alaikum, and welcome to our today's podcast, Democracy in Digital Age Voices from South Asia. And today we have with us a very special guest, Mr. Noman Manzoor, who is a project management professional, communication and development expert with over a decade experience with leading international organizations like USAID, UNDP, and several others, the list goes on. So he brings with him a unique perspective on governance, democracy and communication across South Asia. So welcome to our podcast today, Noman. Thank you. Thank you for having me here. Let's begin our conversation and talk about democracy in Pakistan. So Pakistan has long struggled for the democracy. So what do you think in today's age, what are the challenges being faced by Pakistan if you look at the democracy perspective? Yeah, I think it's very important that we should have these spaces open for the conversation. So it's a very good initiative that we engage young people and we, engage the civic society to talk about democracy, because I think that there is a not very good understanding of how democracy works in our youth, which, constitute the major part of our population. For Pakistan, I think journey has never been a linear journey. So we are still struggling between what's the balance between the actual powers that the parliament and the people should have and what is the civil military imbalance जो थोड़ा सा हमारे country में है, और ये आज से नहीं है. We have this cycle seeing for the last few decades, and there are many reasons for it. I think that actually add to this democratic challenge. एक तो economic issue जिसमें बहुत बड़ा है. दूसरी बात ये है कि जो existing governments हैं या previous governments हैं, if they have been doing their jobs perfectly, तो प्रॉब्ली किसी और एक्टर की या किसी और स्टेट की ज़रूरत भी ना पड़ती. तीसरी जो चीज़ है वो मैं जो समझता हूँ ये कि वीकर रूल ऑफ लॉ, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वहाँ पे भी कुछ गैप्स हैं, जस्टिस क्योंकि लोगों को नहीं मिलता. लास्ट जो चैलेंज मुझे लगता है वो ये है कि जो श्रिंकिंग स्पेसेस हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली फॉर द मीडिया, फॉर द सिविल सोसाइटी एंड द पीपल हु आर एक्टिविस्ट. So all these challenges actually contribute to the Pakistan's democracy, but I'm still hopeful, and I think it's a long journey, and slowly and gradually we'll get there. We're still a kind of a hybrid democracy, but I think we'll get there soon. So you have talked about the loopholes that there are in the democratic process, and we are still in the process of learning and going toward a strong democratic processes. So I really want to ask you about like we talk about the constitution and different democratic charters guarantee the rights of participation. So where do you see are the gaps that are between these commitments and the everyday realities of the citizens in our country? I think the problem with Pakistan has always been that we are very good in lawmaking, and there are huge constitutions, and every other constitution is probably kind of protects the citizen right of all the basic rights that exist. But when it comes to implementation, we are quite behind the implementation. That actually goes back to the same question which I said before कि जब तक हमारे इंस्टीट्यूट स्ट्रेंथन नहीं होंगे जिन्होंने लॉ इन्फोर्स करना है, तब तक ये चीज़ें जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक को पता है कि जी वोट जो है वो आपने ज़रूर देना है, और हर इंडिविजुअल जो कि 18 साल से ऊपर है वो वोट देने का उसको पूरा राइट है. बट डज दिस वोट्स एक्चुअली मैटर? इज़ हिज और हिज वोट इज़ एक्चुअली गोइंग टू कंट्रीब्यूट? क्या जो है अगर हम इंक्लूजन की बात करें तो ख़वातीन की इंक्लूजन की बात है, बट स्टिल देयर आर सो मेनी एरियाज़ जहाँ पे ख़वातीन को उन बेचारी को वोट देने के लिए आ ही नहीं सकती वो स्टेशन के ऊपर, चाहे इट्स अ कल्चरल इशू, चाहे इट्स सोशल इशू, चाहे इट्स अ रिलीजियस इशू, लेकिन वो आ ही नहीं सकती हैं उनके ऊपर. इसी तरह जो मीडिया की फ्रीडम है दैट इज़ आल्सो क्वाइट ग्रे हमारे कंट्री में. कभी ऐसे भी होता है कि इंटरनेट बंद हो जाता है, कभी ऐसे भी होता है कि कुछ जो है वो साइट्स को या सोशल मीडिया चैनल्स को नीचे कर लिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स काइंड ऑफ अफेक्ट हाउ the constitution is being executed, not how constitution exists or not. Constitution is very clear. आपको बोलने का हक है, आपको अच्छी तालीम का हक है, आपको सेहत का हक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं. बट उनकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चैलेंज है. और मैंने आपको बताया
कि ये चैलेंजेस जो हैं वो बड़ी मल्टीफेसेटेड हैं, कुछ इकोनॉमिक हैं, कुछ पावर स्ट्रगल्स हैं, कुछ हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से सारे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। जी, तो जैसे यू हैव टॉक्ड अबाउट द डेमोक्रेसी प्रोसेस इन पाकिस्तान, सो अगर हम देखें तो साउथ एशियन रीजन जो एज एन ओवरऑल है, यहाँ पे भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हर टाइम एक इश्यूज कुछ ना कुछ चल रहे होते, एंड लिंकिंग दैट टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस एज यू हैव you describe yourself as someone who is carrying a 360-degree experience in communication and development. So how has this journey shaped your view of democracy and governance in overall South Asian region? Acha, I think it's very important that we first explain what exactly South Asia constitutes, so that when we talk about this region, people who are new और जो हमारी पॉडकास्ट को नया देख रहे हैं, जो साउथ एशिया के बारे में क्लियर नहीं है, तो उसको बारे में बता दें। जनरली इट कंक्लूड्स साउथ एशिया इज़ अबाउट 7 कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, मालदीव्स है, बांग्लादेश एंड श्रीलंका है। अफगानिस्तान को भी कुछ लोग इंक्लूड करते हैं, कुछ नहीं करते, बट आई थिंक दैट जोग्राफिकली इट्स अ पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। द democracy in these regions have been varied and complex, and none has, I believe, a perfect democracy. अगर आप इंडिया की बात करें तो इन सारे जो कंट्रीज़ का क्लस्टर है उसमें उसकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है, और कंपैरेटिवली अगर मैं कहूँ कि उनकी डेमोक्रेसी इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन साउथ ईस्ट एशिया, तो दैट वॉन्ट बी रॉन्ग, बिकॉज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और डेमोक्रेसी जो प्रिवेल की है ओवर द since 1947 or 48, whatever you take as a point of marker for independence, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक इंडिया उसमें काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान एज आई टोल्ड यू कि स्ट्रगलिंग, इट्स लाइक अ हाइब्रिड डेमोक्रेसी, इक्वल फेजेस हैं हमारे पास डॉक्ट्राइन के और डिक्टेटरशिप के एंड डेमोक्रेसी के भी, बट वी ऑल्सो हैव सीन सम स्पेल्स ऑफ कॉन्टीन्यूसली डेमोक्रेसी। आई थिंक पीपल्स पार्टी आई वुड लाइक टू मेंशन, जैसे जरदारी साहब का जो दौर था, दैट वाज अ कंटिन्यूस स्ट्रेच, एंड आई शुड टेक इट एज अ क्रेडिट एज वेल कि हमने चलो एक कंटिन्यूस पैरा तो किया फॉर डेमोक्रेसी। जो बाकी कंट्रीज़ हैं उसमें भी देयर इज़, कुछ में तो मोनार्की है, कुछ में भी है वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद डेमोक्रेसी, और आई थिंक इसका बड़ा ताल्लुक इससे भी है कि कंट्री की इकॉनमी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन का लेवल कैसा है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये, एज यू सेड कि यू बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस कंट्रीज़ एंड वर्किंग ऑन कम्युनिकेशंस एज वेल एज इन डेमोक्रेसी, जो ये है कि जो मसाइल हैं कुछ साउथ एशिया के वो कॉमन है, जहाँ पे वो जो प्रिवेल करते हैं, यू वांट कॉल इट्स अ कल्चरल इशू है या ये शायद सोसाइटियल इशू है, बिकॉज देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम दैट वी आर ऑल वन कंट्री इन फॉर्म्स ऑफ बरसगीर, एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान वाज वन कंट्री टू, तो मसाइल जो हैं वो कुछ कॉमन है इसके अंदर। आई थिंक द मेजर मसला जो मुझे लगता है वो ये कि करप्शन इज़ वन ऑफ द रीज़न। आई थिंक जो एक और जो मुझे बहुत बड़ा मसला वो लगता है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स भी मेच्योर नहीं है, सो पॉलिटिशियंस आर ऑल्सो काइंड ऑफ पोलराइज्ड। हाउ वुड एक्सप्लेन इट पोलराइज्ड, कि जैसे एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव कि सारे पॉलिटिशियंस को इकट्ठे बैठना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि अगर हम डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट हम सारे पॉलिटिशियंस को भी इकट्ठा होना चाहिए। जैसे आई थिंक आई अप्रिशिएट लॉन्ग अगो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, एंड डिस्पाइट ऑल द रिफ्ट दैट वी हैव बिटवीन PMLN and PPP, she put all the politicians together that let's first talk about कि डेमोक्रेसी को प्रिवेल कैसे करना है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स बहुत पोलराइज्ड है, the politicians don't like to sit together, the political parties don't like to face each other, तो उससे भी एक बहुत बड़ा गैप जो है वो क्रिएट हो जाता है। और दिस इज़ कॉमन इन साउथ एशिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जानी दुश्मन के बन जाते हैं, बट इवेंचुअली द आइडिया इज़ कि आप कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए काम करें। फिर उसके अलावा जो जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी है, जो कि मैं बिलीव करता हूँ कि उसको बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। जब ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ा सा पोलिटिसाइज हो जाती है, जुडिशरी भी पोलिटिसाइज हो जाती है, तो उसमें भी काफ़ी मसाइल होते हैं। एंड दिस रीजंस आई हैव सीन कि ये सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में समहाउ कॉमन है। So what do you think, how can Pakistan strengthen
institutions like parliaments and local government systems, and how can we make it more accountable and people centered? इसका आंसर तो बहुत सिंपल है, इंक्लूजन. अभी एवरीबडी वी टॉक्स अबाउट इंक्लूजन इंक्लूजन, लेकिन क्या हम वाकई इंक्लूड कर रहे हैं लोगों को कि नहीं कर रहे हैं. और इंक्लूजन का मतलब है कि जैसे कि लोकल गवर्नमेंट्स अगर बन जाती हैं तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो कि बिल्कुल नीचे लेवल पे लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे, वो उनकी वॉइस थ्रू देयर काउंसलर्स एंड मेयर्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है. तो जब तक वो आप उस सिस्टम को इनेबल नहीं करेंगे, डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे गवर्नेंस को, तब तक वो मसाइल होते रहेंगे. दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि इसको मैं लिंक करूँगा पिछले क्वेश्चंस के साथ ही, वो ये कि पोलिटिसाइजेशन नहीं होनी चाहिए किसी भी इदारा की. आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया ना, पार्लियामेंट इज़ अ सुप्रीम पावर. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो कहता है जी पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और पार्लियामेंट का फैसला जो है वो बिल्कुल हतमी होना चाहिए. लेकिन क्या ऑल द एक्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट, क्या उन्होंने मिल के कोशिश की कि वो पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर सकें? क्या उन्होंने ये कोशिश की कि पार्लियामेंट जो है जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और बाकी चीज़ों से सुप्रीम रह सके? ऐसा नहीं है. एक्चुअली इट्स अदर वे राउंड. देयर आर अदर फैक्टर्स एंड अदर फोर्सेस जो कि इसको अप्लाई करें. सो अगर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान लाइक एनी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ अगर ग्रो करना चाहता है तो उसको ज़रूरी है कि एक तो पार्लियामेंट अपनी सुपरमेसी को क्लेम करे, और पार्लियामेंट इज़ नथिंग लाइक पॉलिटिशियंस एंड अदर इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. इलेक्शन कमीशन को फुली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी किस्म की पोलराइजेशन और उसमें कोई उसकी इंक्लूजन नहीं होनी चाहिए, किसी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. और आई थिंक जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी इसमें लानी चाहिए. अब व्हेन यू टॉक ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो उसमें आईटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको डिजिटाइजेशन हम कहते हैं. इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ hit and fall that technology gives you, but if you bring technology तो लोगों का जो इन्फ्लुएंस है चीज़ों के ऊपर वो कम हो जाता है. तो आप कोशिश करें कि जो अपना इलेक्शन कमीशन है उसके सिस्टम्स को, वोटिंग सिस्टम्स को, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर दें. अगर आप ऑटोमेट कर दें इसी तरह, और उसके लिए एक ऐसे कोई पोर्टल या कोई ऐसी चीज़ें हो जिसको एक सिटीज़न एक्सेस कर सके और देख सके कि जी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, कितने लॉज बन गए हैं, किस पार्टी ने जब वो रूल में आई थी तो उन्होंने किसके लिए कितना काम किया था. एंड ऑल थिंग्स शुड बी अवेलेबल डिजिटली फॉर द सिटीजन्स टू सी एंड रिव्यू दैट हाउ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस हैव बीन परफॉर्मिंग. सो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स कैन probably help Pakistan reaching towards a better democracy. So you have talked about the inclusion. So what comes into my mind is the youth movements. So grassroots youth movements, from student unions to civil society movements, have happened and has played a role historically in the democracy of Pakistan. So what do you think? What lessons can policymakers learn from those movements? Yeah, the movement is a very interesting word, but it is taken as a risk by so many of the organizations, institutions, and also in Pakistan as well as sadly. The youth is the future, or jitna marzi aap resist kare, everybody has to grow old. Everybody who's sitting in the senior positions eventually have to go away because death is vital, and these young people have to come and take up the country. So youth जो हमारी आप इस खित्ते की अगर आप हिस्ट्री देखें बर सगीर की, पाकिस्तान के बनने में भी आपको पता है कि कितना इम्पॉर्टेंट रोल था यूथ मूवमेंट्स का. ये जो हमारे पेशावर के 2-3 कॉलेजेस हैं और ये अलीगढ़ और ये सारे इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे यूथ है, दे हैव प्लेड मंगस रोल इन उस मुल्क को बनाने में जिसमें कि आप और हम आज आज़ादी से बैठ के बात करें. सो यूथ मूवमेंट्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. अब फिर स्टूडेंट यूनियंस थी जो कि हमारे यहाँ 60s और 70s में थी, लेकिन सैडली वो भी डिसकंटिन्यू हो गई फॉर सम रीजंस विच आर प्रॉब्ली बियॉन्ड आवर कंट्रोल. बट देयर इज़ नथिंग, नो हार्म इन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग कि इन यूथ को या इन नौजवानों को हमें अपने लिए रिस्क नहीं समझना चाहिए, हमें इनको अपना एज अ सपोर्ट सिस्टम समझना चाहिए. और जब जी पाकिस्तान के इदारे या जो सीनियर मैनेजमेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, जब वो समझ जाएंगे कि इनकी से वजह से हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो तब जो है वो यूथ मूवमेंट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं. और दे हैव एनर्जी, मे बी द सीनियर पीपल सिटिंग हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट यू नीड यंग एनर्जेटिक पीपल टू एग्जीक्यूट दिस. सो आई थिंक पॉलिसी मेकर्स को जो है वो ओपन अप होना चाहिए, कंसल्टेशंस करनी चाहिए यूथ के साथ,
ऑन एंड ऑफ, जो कि डेवलपमेंट सेक्टर में तो बहुत कॉमन है, लेकिन गवर्नमेंट में भी कंसल्टेशन करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कंसल्टेशन करनी ज़रा सी चैलेंजिंग है तो एसोसिएशन आप बनाएंगे, फिर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से या कंसर्न पर्सन के साथ आप उनको इंक्लूड करें अपनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उनको कंसल्टेशंस में लेकर आएँ। तो आई होप के थिंग्स जो है वो इम्प्रूव हो सकेंगे, सो दैट यूथ डजंट फील included, excluded. What I wanted to say. Yes, so I totally agree with that because youth constitutes almost more than 60% of Pakistan's population, and their inclusion is very much necessary in the democratic process. So another very much important aspect of today's discussion is the digital era of democracy. And when we hear a word digital, हमारे जहन में directly जो बात आती है, that is media. So what do you think, what role does media play in these movements? वो जो है तो print media भी हो सकती है, social media obviously, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही in है. I think this question is very, very important because nowadays is actually everybody says that it's a media age, and we are the war and the fights are more about the knowledge and information you have and how you disseminate that knowledge and information. अच्छा, मीडिया का रोल है तो बड़ा इंपॉर्टेंट गवर्नेंस में। हम इसको कहते हैं कि 4 पिलर्स हैं, उसमें एक पिलर मीडिया का है जिसने अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करनी है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस काम के लिए उसके उनको एक आईना दिखाना है कि जी आपकी ज़िम्मेदारी है, चाहे आपका कोई भी इदारा है, आप उस जिम्मेदारी पे पूरे उठें, उसको पूरा करें। आप चाहे अखबारों में इस पर आर्टिकल लिखें, चाहे आप टीवी के ऊपर उसके ऊपर चैनल्स करें, या अपने सोशल मीडिया के ऊपर उसको रेज़ करें। बट अगेन आई थिंक व्हाट आई सी इज़ दैट इस पावर को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि हो रही है हमारे यहाँ। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि टीआरपी और सेंसेशनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी सेंसेशनलाइज कर दें, हमारा टीवी चैनल देखें। फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे अखबार में कोई इस तरह की खबर लग जाए कि बाकी लोग हमारे अखबार को ना पढ़ें। तो रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेबल किया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया जाए। और जब मैं अक्सर अपने मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं उनको भी कहता हूँ कि यार आप लोग मसले का मुद्दा तो बता देते हैं, आप ये भी बताते हैं कि गलत हैं, बट वेयर इज़ योर रिफॉर्मिस्ट अप्रोच, आपको उसका कोई हल भी देना चाहिए। तो ये मीडिया को इफेक्टिवली इस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि यू पिन पॉइंट द इशूज़, यू कम अप विद द सोल्यूशन एज वेल, जो कि सोसाइटी में इंगेज हो सके। मीडिया से ज़ाहिर है सबकी आवाज़ भी एम्पलीफाई होती है, और वो चीज़ जो कि शायद जनरली हल नहीं होती उसका, स्पेशली जो वी ऑल बिलीव कि आजकल जो है वो टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम और इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। उनकी एक वीडियो अगर चल जाए तो किस तरह से पुलिस और बाकी सारे इदारे हरकत में आए। तो दिस एक्चुअली टेल्स हाउ इम्पॉर्टेंट मीडिया इज़, और इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ मीडिया स्प्रेड कर रहा है, स्पेशली दी टिकटॉक एंड दिस इंस्टाग्राम, दैट्स अमेजिंग। लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको यूज़ करें एज अ टूल टू इम्प्रूव, नॉट एज अ टूल टू क्रिएट प्रोपेगेंडा। एक और ये बड़ा चैलेंज है कि हमारे यहाँ जो मीडिया प्रोपेगेंडा के तौर पे यूज़ होता है, और प्रोपेगेंडा का मतलब है कि यू हैव नो आइडिया दिस इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट करेक्ट, सो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। तो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दाओ एवरी सिटीजन इज़ अ जर्नलिस्ट नाउ, बिकॉज जिसके पास ये माइक है वो अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी कह सकता है। And the other day I was talking to someone, I was talking to my daughter, and she says, Baba, this is not right, we should do it this way. And I was like, where do you learn this? And she says, I know that influencer वो जिसकी वीडियोज़ होती है ना, उसने मुझे बताया था। I was like, who is that influencer? And she showed me the videos, and I noticed that वो continuously उसकी वीडियो देखे, and then I have to literally sit down and explain her कि this is a big channel, this is a small channel, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं बेटा, ये चीज़ें ठीक हैं। तो डिजिटल मीडिया लिटरेसी इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन को, मीडिया को सही तरह से इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। और फिर जो मीडिया ऑनर्स हैं, आई थिंक इट्स अ मैसेज दैट आई वांट टू पास इन थ्रू दिस पॉडकास्ट एज वेल, कि अगर आप कोई चीज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या लार्जर ऑडियंस में जा रहे हैं, अगर आपका पब्लिक अकाउंट है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक हो और वो ऑथेंटिक हो। सो ऑब्वियसली मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बट आर यूथ को भी ये समझने की ज़रूरत है कि उस मीडिया को किस मीडियम पे और किस तरीके से यूज़ करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो
Coming back towards your own experience, you have worked with several big international organizations like USAID, UNDP, Asian Development Bank, and so on and so forth. So, what lessons from the international development projects can be adapted to strengthen the local democratic resilience across the South Asian region? आई थिंक जितना हम डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं पहले तो वो इम्पॉर्टेंट है, विच एक्चुअली मैन दैट यू ट्राई टू किसी भी कम्युनिटी का मसला है तो लेट द पीपल पुट टुगेदर, लेट दैम रिजॉल्व देयर इश्यूज एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड ओवर दैट, जस्ट लाइक बॉटम टू टॉप अप्रोच, नॉट द टॉप टू बॉटम अप्रोच। तो वो जैसे लोकल गवर्नमेंट्स हैं या कुछ भी है, एक तो लोगों को इंगेज करें ताकि उनको पता हो कि हमारे मसाइल जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और वो सोल्यूशन लेकर आए, रादर देन ऊपर से सोल्यूशन आ रहे हो। तो एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि अगेन जो है एक और बड़ा सैड एलिमेंट है हमारे कंट्री में कि लेट्स से कि जी एक इदारा बना हुआ है और वो इदारा इसलिए बना हुआ है कि उस इदारे का सर्टन काम है, वो इदारा उधर ही पड़ा रहता है। कोई नया फ़ंड आया, कोई एडीबी ने कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आए, वर्ल्ड बैंक ने कोई नया लोन दिया, तो आप उस इदारे को उधर ही छोड़ देते हैं, उसके साथ एक पैरेलल इदारा बना देते हैं। और कभी कभी दुख भी होता है कि ये हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, फिर क्या होता है कि डोनर ने तो आपको लोन दिया है या आपको ग्रांट दी है और वो तो वाकई गवर्नमेंट को हेल्प करना चाह रहा है बेस्ड ऑन कि आपकी कंट्री के इश्यूज़ को सॉल्व करें। अब वो इदारा उधर ही खड़ा है, उसके साथ एक और इदारा खड़ा हो गया, उसके साथ एक और इदारा खड़ा हो गया, और तीनों इदारों का मोर और लेस काम एक ही है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि उन इदारों के आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं और मसाइल जो है वो उधर के उधर पड़े रहते हैं। तो ठीक है, डेवलपमेंट कम्युनिटी को भी इसका एहसास करना चाहिए, लेकिन अगेन इट गोज़ बैक टू और ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस कि वो इस चक्कर में ना पड़ें कि जी मैंने तो लोगों को नौकरियां देनी है तो एक नया इदारा बन जाएगा तो मैं अपने सारे इलाके के हल्के के लोगों को उधर नौकरियां दे दूँगा। हमें चाहिए कि हम जो एग्जिस्टिंग इदारे हैं उनको स्ट्रेंथन करें, और ये ट्रेंड कॉमन है अगेन एज ए सेड यू कि साउथ एशिया में कि ये नहीं होना चाहिए, और जो इदारे जिस काम के लिए बने हैं उन्हीं को अब स्ट्रेंथन करना चाहिए। सो बेसिकली आपकी बात का जो क्रक्स है वो यही है कि इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट या डेवलपमेंट सेक्टर आप कह लें कि उनके आपस में दरमियान में भी एक बड़ा ब्रिज है जिसको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और इंक्लूजन ऑब्वियसली, इंक्लूजन पर जब हम बात करते हैं तो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ की बात सब करते हैं कि वुमेन को इंक्लूड करना चाहिए, रूरल जो हमारी पॉपुलेशन है उनकी इंक्लूजन और उनकी जो है तो वो इंक्लूड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ की बात बहुत सारे लोग करते हैं, बट हम देखते आ रहे हैं कि फिर भी उनकी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रही है, दे आर स्टिल अंडर रिप्रेजेंटेटिव। सो व्हाट स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स डू यू बिलीव could ensure their meaningful inclusion in the whole process of democracy? So when you talk of minority groups, तो there are different segments of एक तो ख़वातीन हैं, एक people with disabilities हैं, एक हमारे religious sects हैं, और एक हमारे जो है वो कुछ कल्चरल sects भी हैं। तो ये सारी minorities हैं वो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में, we represented by a white in our flag as well if talk minority। अच्छा, ख़वातीन का ये है कि दिस इज़ वेरी सैड कि वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिसेंट रिपोर्ट आई है, उसमें वुमेन आर द सेकंड, वी आर द कंट्री विद द सेकंड लोएस्ट वुमेन इन आवर कंट्री। अब जो पॉलिसी लेवल पे क्या हो रहा है कि वो कहते हैं जी कोटास फिक्स कर। अब कोटास फिक्स करने का मकसद ये होता है कि जी उसको ना जैसे एक टिक बॉक्स करना होता है, और टिक बॉक्स भी एज ए जेंडर एक्सपर्ट और जेंडर कंसल्टेंट में किसी पे जानता हूँ तो वो कहते हैं जी पहली बात तो हमें चैलेंज करते हैं कि जी आप क्या आ गए जेंडर का एजेंडा लेने के लिए, औरतों को इतनी आज़ादी तो है, उनको और आज़ादी क्या चाहिए। एक जनरल माइंड सेट है सोसाइटी में, इट्स गोना टेक सम टाइम उसको चेंज होने में। तो टिक बॉक्स करने के लिए क्या आते हैं, हाँ जी हमें फंडिंग नहीं मिलेगी या गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी है या ये फलाना है, तो उस डब्बे में ना अगर 10 टेबल के ऊपर मर्द चाहिए तो 2 ख़वातीन डाल दें, बस कोई भी जानने वाली पकड़ लाएँ, कोई अपना कोई इस तरह से रेफ़रेंस कर लें। तो यू डोंट हैव टू ब्रिंग वुमेन टू द जस्ट टू फिल द checklist. You have to bring the strong women together. You have to bring this women on the decision making side as well. ये कोटा समझ के या इस तरह समझ के नहीं करना चाहता। I'm very glad बहुत सारी ख़वातीन अब आगे आ रही हैं। अब वो जो प्रोसेस है उसमें कि वो कितनी स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे आएंगी, वो एक लंबा प्रोसेस है, और वो एक जो कल्चरल सेटिंग है हमारी उसमें इट्स गोना टेक सम टाइम। एज़ फार एज़ आप माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं या जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं, तो अगेन गवर्नमेंट ने या लॉ ने काफ़ी सारी इनको प्रोविजंस दी हुई हैं। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ अलाउड टू प्रैक्टिस हिज और हर रिलीजियस
जो भी उनके त्यौहार हैं, और हुकूमत जो है वो जब फॉर्मली पब्लिश करती है उसमें बताती है कि जी ये क्रिश्चियंस के लिए ये वाली छुट्टी है, जो हिंदू कम्युनिटी है उसके लिए ये वाली छुट्टी है। बट लोकली जो कल्चरली जो हो रहा है वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है जो कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के साथ ठीक होगा, और आई थिंक थोड़ी-थोड़ी अवेयरनेस के साथ भी ये ठीक होगा। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड आई होप दैट वन डे वी विल रीच देयर। Yes, inshallah, we can hope that. So, you are a communication expert, and storytelling and collective memory have always shaped Pakistan's political history. So, how can narrative be used today to strengthen democratic culture and solidarity? What do you think about it? आई थिंक आर्ट का और क्या नाम है उसका, सिविक राइट्स का बड़ा पुराना और गहरा ताल्लुक है। चाहे हमारी ख़वातीन की मूवमेंट्स हो जो कि ज़िया के ज़माने में हुई थी, और जो जो आके ख़वातीन ने अपने दुपट्टे जला दिए थे जस्ट शो दैट हाउ स्ट्रॉन्ग वी आर। या जैसे हमारी स्टूडेंट यूनियंस हों तो उसमें भी आर्ट का और पोइट्री का और म्यूज़िक का बड़ा गहरा ताल्लुक है। थिएटर हैज़ बीन वेरी एक्टिव डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके अगर आप किसी कॉज को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई थिंक नोबडी कैन फॉरगेट द रोल ऑफ ग्रेट पोइट्स लाइक फैज़ एंड अदर, जिनका अभी भी जो है वो कलाम बड़े शौक से पढ़ा जाता है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि they are not only the art of Pakistan but also the art of the Southeast Asia. Faiz को across the other day I was watching a few years ago जब सिख मूवमेंट इंडिया में चल रही थी, तो everybody was enchanting फैज़ के कलाम। It was so hurting to see that we have produced so much and so much can be done. तो आर्ट के थ्रू स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप काफ़ी सारी कम्युनिकेशंस को so in one of the project, for example, and I'm just trying to illustrate with an example, in one of the project I was working on, countering violent extremism, और उस countering violent extremism के ऊपर एक बड़ा ये हमें जो पाकिस्तान ने नोट किया कि mob lynching जैसे होती है, तो we were thinking कि how we can aware the audience कि कैसे इस रवैये को कम किया जा सकता है। All of a sudden there's a drama that I aired, I think, on Hum TV, which actually showed the mob lynching. You remember the name of that drama? मेरे ज़हन से भी निकल रहा नाम। Um, I don't remember the name, but I can recall it. yeah, It was very recent. it was very recent. आई थिंक, और उस ड्रामे ने इतना ज़्यादा रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट किया, एंड आई वाज़ सीइंग कि सोशल मीडिया में लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, अखबार में लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड देन सिंस आई एम अ लिटिल साउथ एशिया की भी, मैं इधर से इंडिया से उधर से बहुत, तो मैंने देखा कि द ड्रामा गेट सो मच इम्पोर्टेंस कि वो उधर भी रिकॉल हुआ और उनकी भी स्टोरीज़ में और इंस्टाग्राम मैनेज हुआ। एंड आई रियलाइज़ कि ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान के नहीं हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द की कम्युनिटी के लिए। और इतना स्ट्रांग वो मैसेज था कि अगर एक एक खातून को इंडिपेंडेंट आप कर देते हैं, और अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में समझती है कि वो एंटरटेनमेंट का कोई ग्रुप खोल लेते हैं, तो हाउ the conservative society looks at it so aggressively, they think that they should be killed then and there, and they take the law in their own hand. Though, our country, no one laws allows that. So I think so it was a very powerful message, and we all should use art as much as we can, because बड़ा indirect, subliminal आपके subconscious को जाके hit करता है, और आप जो है वो मैसेज जो है वो टॉलरेंस के, गुड सोसाइटी के, डेमोक्रेसी को प्रिवेल करने के, उसके थ्रू जो है वो भेज सकते हैं। तो जो आपने बात की अभी कि आर्ट के थ्रू ऑब्वियसली बहुत सारे इश्यूज़ को हम जो है तो वो सोसाइटी के इश्यूज़ को उजागर कर सकते हैं, जैसे कि एज एन एग्जांपल जो अभी हमने ड्रामे की बात की, तो इससे ये भी रियलाइज़ हुआ हमें, ये बात भी लोगों ने की कि बिकॉज़ पाकिस्तानी लोगों का इंस्टीट्यूशंस पे उतना यकीन नहीं है, द ट्रस्ट an institution is very much fragile. So what do you think, what reforms and innovations are most urgent to rebuild this trust in the institutions? अच्छा देखिए, पहली बात तो जैसे मैं आई इवन रेफर्ड अगेंस्ट कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी मेकिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली किसी भी इदारे के लिए मुश्किल है कि वो सारी की सारी आवाम को रीच आउट करे। लेकिन जो अगर एसोसिएशंस बनी होंगी, चाहे टीचर्स की एसोसिएशन है, स्टूडेंट की एसोसिएशन है, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको इकट्ठा करें, उनसे कंसल्टेटिव लें। तो पहले तो कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो लोग, जो स्टेक होल्डर हैं, वो फील एनरिच्ड
फॉर एग्जांपल मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करूँ, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतलब है बिज़नेस को प्रमोट करना। अगर बिज़नेसमैन को, वुमेन बिज़नेस एसोसिएशंस को, इंक्यूबेशन सेंटर्स को, अपकमिंग बिज़नेसेस को और बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, बिकॉज़ इवेंचुअली हुकूमत का काम ही है फैसिलिटेट करना, गिविंग द सर्विसेज़ टू द पीपल। तो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ओपननेस। ओपननेस का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ों को ओपन रखें पब्लिक के थ्रू। अब आजकल तो वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू आप चीज़ों को अपनी बताएँ कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल भी हों आपको, अवाम को, कि आप ये बताएँ कि जी ये मसला था, इसको हमने ऐसे हल किया। इस इदारे में ये चीज़ है, हम इसको इस तरह से हल कर सकते हैं। और अब एक तो मीडिया के साथ भी अगर आप अपनी कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन अच्छी रखें, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ पीपल, मीडिया वाले प्रॉब्ली क्वेश्चन यू एंड देन यू एड्रेस दोज़ क्वेश्चन। और आई थिंक जो जैसे खुली कचहरी अगर आप महीने में या 2 महीने में 1 दफ़ा भी लगा लेते हैं, रियल स्टेक होल्डर्स को बुला लेते हैं, उसको आप लाइव स्ट्रीम कर देते हैं, उसको आप जर्नलिस्ट को बुला देते हैं, तो आई नो देयर विल बी अ फ्रिक्शन। Yeah, so coming back towards the youth of Pakistan, we see कि पाकिस्तान के जो यूथ है उनके दरमियान और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल प्रोसेस है उनके दरमियान एक काफ़ी बड़ा ब्रिज है जिसको ओवरकम करने की ज़रूरत है, बिकॉज द पाकिस्तानी यूथ एट दिस पॉइंट इज़ डिल्यूजन अबाउट with the politics. So what role do you see for youth in shaping the democratic future of the country? And पीका का जो एक्ट है अभी रिसेंट भी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Well, this is a huge Pandora box that you have opened. ये तो मुझे लग रहा है कि ये रूह अफ़ज़ा को छेड़ने वाला काम कर दिया आपने। और वो जब रोज़ा एक्सप्लेन करेगी तो बड़ा वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करेगी, बट एनी हाउ दैट्स जोक्स अपार्ट। आई थिंक देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वन इज़ कि यूथ एकदम से इतनी ज़्यादा पोलराइज पाकिस्तान में क्यों हो गई, और वाई द यंग पीपल हैव गॉट द एक्सेंट कि जिस पे उसको नहीं जाना चाहिए था। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव सीन के यूथ ने क्या-क्या नहीं किया फॉर द लीडर। और जब कोई बंदा या बंदी एक्साइटेड होके किसी भी चीज़ में आता है, जैसे यूथ वाज़ वेरी एक्साइटेड कि वी हैव अ वे आउट, वी हैव लॉट ऑफ डिप्रेशन गोइंग ऑन, देयर इज़ समवन हू कैन लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, तो इमोशनली थे। एंड द गुड पार्ट आई विल आल्सो से इज़ कि जो यूथ की एंगेजमेंट थी इन द रीसेंट पोलराइजेशन वाज़ वेरी ह्यूज। तो एक तो बड़ा ही पॉजिटिव खुशाइन मैं इसको कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अभी रिसेंटली जिनकी पहले हुकूमत थी, उन्होंने यूथ को बहुत अच्छी तरह से अपने साथ एंगेज किया, तो सब पॉजिटिव थिंग, इसको नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो नए थे इसके अंदर, और क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी, ना उन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन यूनियंस देखी हुई थी, ना उनकी पहले कोई एक्टिव पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, ना हमारे कॉलेज और स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, ना उनको ये पता है कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या डेकोरम है, ना उनको ये अंदाज़ा है कि अपनी बात को ऊपर पहुँचाने के लिए किसी के साथ बदतमीज़ी करना या किसी को तंग करना या किसी को दुःख पहुँचाने से बात नहीं की जा सकती। अगर आपकी बात में वज़न है, तो वो बात आपकी वैसे भी चली जाएगी। सो यूथ वाज़ न्यू, so polarization was high, लेकिन अब I think it's I would openly say now कि even the current government is now doing a lot of things for the youth. अब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है, मैं इसमें देखता हूँ कि बड़े-बड़े सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं वो बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये लेसन है जो कि सीनियर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लर्न किया है, और वो चाह रहे हैं कि जो हमारे पास गैप था, वो हम इसको किसी तरीके से दूर कर सकें। तो वो एक सफ़र है जो कि शुरू हुआ है यूथ को एंगेज करने का, और वो आई एम श्योर कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विल गेट देयर समहाउ। एज़ फार एज़ द पीका एक्ट इज़ कंसर्न्ड, अच्छा ये देखिए बड़ा एक कंट्रोवर्शियल किस्म का पीका एक्ट है, और ये खबरों में आना शुरू हुआ है 2025 में, जब उन्होंने रिसेंटली इसकी अमेंडमेंट की है। पहले मैं बता दूं कि पीका है क्या, इट इज़ हर कोई इस बारे में बात करता है, लेकिन उसका जस्ट स्पेल इट आउट, इट्स प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ इट, ये एक कानून बना है कि जो ऑनलाइन क्राइम्स हो रहे हैं उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अब क्राइम इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव वर्ड, तो उसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि जो पीका का एक्ट है वो हमारी आज़ादी को सल्ब करने के लिए है या हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए है।
अब ज़ाहिर है, जैसे मैं आपको बताया कि यूथ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पोलराइज़ थी, तो दे डोंट नो द डेकोरम, दे डिडंट नो दैट कि मिस इन्फॉर्मेशन क्या है, डिसइन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, जो गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं उनके खिलाफ हम क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते, और क्या कहने से जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन की हतक हो सकती है, उसकी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पे सवाल आ सकते हैं, क्योंकि अगेन उनका भी कसूर नहीं था, बिकॉज़ उनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं थी, एंड दे वर लाइक ऑल टुगेदर। तो पीका को मेरा ख्याल इस तरह से देखना चाहिए कि जो साइबर क्राइम ऑफेंसेस हैं, उसको ये मैनेज करने में हेल्प करता है। जो हेट स्पीच और टेररिज्म रिलेटेड चीज़ें हैं, उसमें इसका क्लियरली ज़िक्र है। डिफेमेशन और फेक न्यूज़ को का ज़िक्र है, और अगर किसी भी अथॉरिटी, बॉडी, पर्सनल या किसी जज के खिलाफ या किसी बड़े फ़ौज के अहदेदार के खिलाफ अगर कोई बात ऐसे ही कह देता है, तो पीका टू से कि you have to be responsible about whatever you put out into the social media, irrespective of your political association, anyone. So look at it in a positive way. ये थोड़ा सा रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है, और इसी जो नया पीका का एक्ट आया है, उसके थ्रू जो है वो दे आर आल्सो क्रिएटिंग सोशल मीडिया की रेगुलेशन की चीज़ें, और 3-4 और इदारे हैं जो कि इसके अंदर बनेंगे, और आई थिंक वो ज़रूरी भी था। डिस्पाइट जितनी मर्ज़ी आज़ादी हो आपको बोलने की, आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप सोशल क्लैशेस क्रिएट ना करें। बड़ी मज़ेदार बात है ना, कि गिव माय पर्सनल एग्जांपल कि सबसे बड़ी बहन है, उनके बच्चे दे आर ऑल टीनेजर्स। सो before this political polarization, whenever I used to talk to those young kids, they're teenagers, so they used to talk to me and say, "Mamu, ये हो रहा है, मामू वो हो रहा है." And the moment I started talking to about a political party, I saw that they were jumping from their sofas and they were getting so aggressive, and I felt that ये तो बड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है. This is not supposed to be. It's a political dialogue that I'm trying to understand कि why you're supporting this party and what actual development में आपने क्या ज़्यादा की है. And then they were out of control, and then I called my sister. She was in kitchen में काम कर रही थी. मैंने कहा क्या हो गया तुम्हारे बच्चों को, ये why they are doing this? कहती कुछ भी नहीं हुआ, एक को ना एक सियासी जो है ना इनके ऊपर वो बुखार तारी हो गया, और कह रही मैंने भी समझाना छोड़ दिया कि वो वक्त के साथ खुद ही समझ आएंगे. द आइडिया टू गिव एन एग्जाम्पल इज के इतना ज़्यादा पोलराइज नहीं होना चाहिए आपको, और इसीलिए ये रेगुलेशंस एंड रूल्स बने हैं, जो कि वो आई थिंक आई डोंट नो हमारे पास कितना टाइम है, एक बड़ी मज़ेदार बात जो मुझे किसी दफ़ा एक बुज़ुर्ग ने समझाते हुए की थी, लाइक टू से कि जी क्योंकि एक आप गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी के साथ एक रूल बुक होती है, मोबाइल आपको मिलता है तो उसका एक बुक होती है, और आपको जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसके लिए कुरान या दूसरी सोसाइटीज़ में जो भी रिलीजियस बुक है वो दे दी, ताकि कोड ऑफ एथिक्स हो। बिकॉज़ अगर बिल्कुल ही इंसान को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ही वो अपनी सारी हदें शायद पार कर दे, जो कि सोशली, रिलीजियसली या बाकी चीज़ों होती है डेंजरस होंगी। तो वी शुड टेक दिस रूल्स एज़ अ फ्रेंडली guideline, rather than something that we penalize us to harm anyone. It doesn't mean to harm anyone. It's just to regulate a normal social culture. So thank you so much today कि आपने हमारे लिए time निकाला, and we had this very fruitful discussion on democracy and South Asia में उसका एक क्या process चल रहा है पाकिस्तान. So Thank you so much for watching our podcast. See you soon. Allah Hafiz.